Hi guys, I am Rohan Dhakkad. I am again back with another video. Till previous video we have studied about the relationship between the zeros or we say roots and the coefficient of a polynomial. Okay. In our previous video we have studied about the concept of the second chapter polynomial and we have also solved the exercise 2.1. Okay. And we have also seen one example based on this relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Okay. In this video now we will solve the problem of exercise 2.2. Okay. So I'm just taking the clip of that first of all. Guys, one more thing is if you have not subscribed my channel, that name is Courtship, so please subscribe it and press the bell icon for the notification of the latest video. Okay guys, let's first I need to take the clip. Okay. Okay, I'm just taking the clip of these three questions. So you can see here what is our first question. Guys, if it is not visible then I just zoom it. Okay, yeah guys, you can see here. Now first question is x square minus 2x minus 8, which is a polynomial here. Okay, we need to find the zeros means we can also say the roots here. Okay, if we are not comfortable with the zeros word, then you can say the roots as well. Okay, of the following quadratic polynomial, and we have to verify the relationship between roots and their coefficient and the coefficients. Okay, so see the example, see the solution here, how we can solve this problem. For this, what I need to do, I need to split this middle term. Okay, we split this middle term. Okay, our method we have seen in our previous video, that is splitting the middle term, splitting the middle term. Okay, splitting the middle term. Okay guys, so how we can do that? Just a minute, I take the another pen. Yeah, so here how we can do that. Here we will compare this equation with this general polynomial. Okay, general quadratic polynomial, x square plus bx plus c, bx plus c is equal to 0. So what we need to do here, it is if we compare this, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, then we will get in a is equal to 1, a is equal to 1, b is equals to minus 2. Okay, because plus is written here, plus minus minus, b is equals to minus 2 and c is equals to minus 8. Okay, and our get this, our c as a c is equals to minus 8. Okay, so how we can split this term? Look at here, x square, what I need to split actually in the place of these two. Okay, where we need to split in the place of 2, I need that term, which can be like this. If I will multiply that term, okay, suppose I am talking about these terms, I am taking variable as a term 1 and term 2. Okay, term 1 into term 2. If I will multiply these two term, then what should I get? I get 8. Okay, I get this 8 here, and if I will just add it, term 1 plus term 2, not I add it. Okay, sorry, I should get term 1. if I will multiply, यदि मैं इस term 1 और term 2 को multiply करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? a into c. ओके, और इधर a into c क्या है हम देख लेते हैं. a की वैल्यू 1 है. ओके, और 8 की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है -8. ओके, तो हमें टर्म 1 और टर्म 2 के मल्टीप्लिकेशन पे -8 मिल जाना चाहिए. ठीक है, और टर्म 1 और टर्म 2 के एडिशन पे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 के एडिशन पे हमें क्या मिलना चाहिए? एडिशन पे हमें मिल जाना चाहिए दिस -2. ओके, b मीन्स हमें -2 मिल जाना चाहिए. ओके,
तो यहाँ पे हमें वैसे दो टर्म्स को फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों टर्म क्या होंगे। वो दोनों टर्म देखो, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं -4 एंड +2। ओके, -4 एंड +2, क्योंकि देखो इन दो टर्म को, ये दो टर्म है। ओके, टर्म 1 टर्म 2, -4 +2, इन दो को मैं यदि ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -4 +2, प्लस माइनस माइनस का 2। ओके, इंटू करने पे क्या मिलेगा, -4 इंटू 2 विल बी -8। ओके, सो वो दो टर्म ये होंगे, ठीक है, -4 और +2। सो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे वो दो टर्म क्या होंगे, x², 2 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, हम चाहे तो वापस लिख सकते हैं, -4 +2। ओके, वो दो टर्म कौन से होंगे, -4 +2, जिनको ऐड करने पे मुझे -2 ही मिलेगा। ठीक है, -4 +2 इंटू एक्स -8। यहाँ पे मैंने 2 की जगह यानी b की जगह पे स्प्लिट कर दिया। ओके, ये स्प्लिटिंग पार्ट है। स्प्लिटिंग पार्ट हमें कैसे, कंडीशन होती है कि टर्म 1 और टर्म 2 को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू सी वाला रिजल्ट आना चाहिए, a इंटू सी के थ्रू जो आएगा, और उनको प्लस करें तो b वाला रिजल्ट आना चाहिए एज इट इज b की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म हमें पता चल गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, x², देन यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर, देन ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स, 4x -4x, देन प्लस प्लस, ये प्लस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्योंकि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ओपन जरूर होगा, और इधर आ जाएगा 2x -8, 2x -8 इज इक्वल टू 0। ओके, देन हम इनमें से कॉमन लेंगे, इन दो में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे, और इन दो में से जो भी नंबर्स कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स कांस्टेंट और जो भी वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ओनली x कॉमन आ रहा है तो हम x को लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1x बचेगा और -4, प्लस यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी सेम x -4 ही बचेगा अंदर। ओके, x माइनस, आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा सकते हो, राउंड ब्रैकेट भी। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, x -4, ये कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पे x -4, और हमारे इधर क्या बच जाएगा, ये कॉमन चला गया x, और +2 हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये दोनों, ये हमने फैक्टराइज कर दिए। ओके, ये एक्चुअली कौन सी मेथड है, फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। ओके, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था गाइज, ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने एक एग्जांपल देखा था ये वाला। ओके, 2x² + 5x + 3 वाला हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। गाइज, यदि आपने ये नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने फैक्टराइज कैसे किया। ओके, ये 2 कंडीशंस के थ्रू, लाइक वो एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब देखो ये 0 बना है, तो या तो ये 0 होगा, ये किस लिए 0 बना होगा, मतलब कैसे 0 बना होगा, 0 बनने के लिए या तो ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 हुआ होगा। ओके, तो हम दोनों को एक एक बार 0 के उसमें रख के देखेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x -4 को एक बार 0 के इक्वल में रख के देखेंगे। ठीक है, हम सपोज करेंगे कि एक बार ये 0 बना है और एक बार x + 2 0 बना है। ठीक है, इससे हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। ओके, जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती होगी। सेटिस्फाई मतलब, यदि मैं, पहले हम वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ पे -4 है, 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू एक 4 हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो x की वैल्यू हमें एक -2 मिल जाएगी। इसका मतलब है यदि मैं +4 या -2 की वैल्यू इसमें रख दूं इस इक्वेशन में, x² - 2x सॉरी गाइस, यदि मैं इसे वहां पे रख दूं तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा जो ये पूरी वैल्यूज है x² - 2x -8, ये 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, ये इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, जीरोस भी बोल सकते हैं हम, रूट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम रख के भी चेक कर लेते हैं। ओके, एक मिनट में पेन कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा क्या थी इक्वेशन पॉलिनोमियल की, x² - 2x -8, 2x -8। ओके, हमारी यही इक्वेशन थी। मैं एक बार बुक में भी देख लेता हूँ। हाँ, यही थी हमारी इक्वेशंस। ठीक है, अब एक बार x की वैल्यू को मैं क्या रखता हूँ, एक बार x की वैल्यू को 4 रखते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द 4
-2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा -8 मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, और इधर 2 × 4 -8 ऑब्वियसली ये 0 बन गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर माइनस का ही आएगा। 16 - 16 0। ओके, x की ये वैल्यू रखने पे 4 वैल्यू रखने पे तो ये 0 बन गया है, ठीक है। अब हम x की कौन सी वैल्यू रखते हैं इधर, अब हम x की -2 वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है, कि इस केस में 0 बन रहा है कि नहीं हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि ये 0 बन रहा है तभी हमारे ये रूट्स होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। -2 का स्क्वायर -2 × x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू होगी -2, देन हमारी होगी -8। ओके, -2 का स्क्वायर यानी -2 × -2 -4 -4। ओके, और यहाँ पे -8 आ जाएगा एज इट इज। 4 + 4 8, 8 - 8, ये भी 0 बन चुका है, मतलब दोनों हमारे क्या है, रूट्स है। रूट्स या जीरोस मतलब इनकी वैल्यू रखने पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या की वैल्यू पूरी 0 हो जाती है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो ये हमारे रूट्स है, ये तो हमने पता कर लिया, ठीक है, हमने जीरोस पता कर लिए पहली चीज। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, हमने अल्फा और बीटा को बोला था ना, वो रूट्स ही थे एक्चुअली, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हमने अल्फा बीटा, ग्रीक लेटर से ये। तो हम यहाँ देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स। हमें जैसे कि 1 मिनट में पेन कलर चेंज ही कर लेता हूँ। सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। सम ऑफ रूट्स क्या है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स की जो वैल्यू आई है, ठीक है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है अल्फा की वो है 4 और बीटा की वैल्यू -2, या इंटरचेंजेबल भी है, आप कोई सी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं इधर, ठीक है, बिकॉज ये है तो एक वेरिएबल सी जो कि हमारे रूट शो कर रही है कि हमारे रूट है अल्फा बीटा। ओके, यदि हम इनका सम करें तो इनका सम किन के बराबर आना चाहिए, जैसा कि हमने देखा था हमारे रिलेशनशिप में -b/, है, और इधर b क्या है, ये कॉफिशिएंट है। ओके, जैसा कि मैंने कंपेयर किया था, कॉफिशिएंट है x का, आप देख सकते हैं क्या है, कॉफिशिएंट है इस x का। ओके, दिस b इज अ कॉफिशिएंट ऑफ दिस x। ओके, सो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड को। b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, -2, या माइनस तो ऐसे ही रहेगा बट -2 अलग से आएगा, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है, अपॉन a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, a की वैल्यू को हम 1 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस ओनली 2। ओके, 2 वैल्यू आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा की। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 4 है, ये हमारा अल्फा है, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपनी वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2। ओके, या गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 ± -2, यहाँ पे भी हमारा 2 आ चुका है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा 2 आ चुका है। इसका मतलब है हमारा ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर गया सम ऑफ रूट्स वाला, ठीक है, पहला रिलेशन होता है, ध्यान रखना ये, जब हम रूट के सम कर दे रूट्स का, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेकेंड रिलेशन क्या होता है गाइस, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सेकेंड रिलेशन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा गाइस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, है। ओके, c मीन्स कांस्टेंट टर्म था और ये वही है कॉफिशिएंट है x स्क्वायर का, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में, कॉफिशिएंट मतलब। ओके, अब हम देखते हैं a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -8 है, यहाँ पे रख देते हैं हम वैल्यूज को। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8/1 को -8। ओके, यदि किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो ऑलवेज 1 रिप्रेजेंट है, हमें उसे एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब अल्फा की वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू थी 4, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, और बीटा की वैल्यू थी -2 ना कि 2। ओके, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 × -2 क्या मिल रहा है, हमें -8 मिल रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब ये दोनों ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो चुका है। ओके, इस तरह से हमने ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। ओके, पहले हमें 0 पता करना है, देन हमें इस तरह से रिलेशन को सेटिस्फाई करना है।
Okay guys, I hope you get it. Okay, I am moving to the second problem. What is the second problem? I just write that problem first. Okay, second problem. सेकेंड प्रॉब्लम है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम ये है। यदि अब मैं इस सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो देखें ये ए से। ओके, यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था अल्फाबेट लेटर कोई सा भी हो सकता है, कैपिटल या स्मॉल। यहाँ पे हमारा ए से एक ही वेरिएबल है पूरी पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब हम ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद द कंपेयर इट। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू देख लेते हैं। ओके, बिकॉज हमें इसकी जरूरत डेफिनेटली बाद में पड़ेगी। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू देखिए पॉजिटिव लगा होता है उधर, ये माइनस में अलग से है, तो बी की वैल्यू है -4 ना कि 4 है ओनली। ओके, और सी की वैल्यू भी क्या, सी की वैल्यू तो प्लस का 1 है यानी 1 है। ठीक है, अब देखिए किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लगा होता तो वो पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक है, इसे भी हमें एक्सप्लिसिटली रूप से नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये मैं पॉजिटिव हटा भी सकता हूँ, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब हम इसके रूट्स को पता करते हैं। रूट्स को पता करने के लिए क्या है, हमें स्प्लिट करना होगा इस मिडिल टर्म। हियर वी हैव कंपेयर्ड, हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। ठीक है, अब हमें ये टर्म्स स्प्लिट करना है टर्म्स। तो हम देखो टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे। चलिए ये रॉन्ग है, टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है, एग्जैक्ट तरीका। टर्म स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें ये जो ए और सी है इसको मल्टीप्लाई करने पे, जैसे कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। ठीक है, 4 इंटू 1, हमें 4 चाहिए, ऐसे ही दो टर्म चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। और इधर जो साइन है, जैसे कि इधर प्लस है, आप देख सकते हैं इधर प्लस है, तो हमें इधर 4 जो ये टर्म है बी, सिर्फ बी, ये इसको देखिए। ठीक है, साइन को मत देखिए, बी बी नहीं बोलूंगा मैं इसको, 4 को देखिए। ठीक है, इसके साथ में जो कोफिशिएंट है इसका 4 को देखिए। यहाँ पे जो 4 है प्लस, यहाँ पे यदि प्लस का टर्म है तो यहाँ पे प्लस करने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 1 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो टर्म है, ऐसे दो टर्म है, ऐसे वो दो टर्म है सी। ठीक है, सॉरी 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 ऐसे दो टर्म है जिसको प्लस करने पे 4 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 ही आता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमको वो टर्म्स को पता करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2। ओके, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे भी 2 प्लस 2 ही लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2s। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा -2s। अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। पहले हम कॉमन लेंगे 2s को, यहाँ पे 2s कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ अंदर बचेगा 2s, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम -1। ओके, ताकि ये अंदर सेम बन जाए। 2s हो जाएगा, -1 कॉमन हो गया, माइनस बाहर चला गया, और प्लस 2 माइनस से मिलके बना होता है तो एक माइनस बचा अंदर, 2s माइनस 1। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम 2s माइनस 1 को ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2s माइनस 1, और उधर से भी अब हम देखें इधर, तो सेकेंड टाइम में हमारे पास इधर 2s बचा और -1 बचा, तो इधर भी 2s माइनस 1 आ जाएंगे, यानी हमारे पास सेम ही रूट्स आएंगे। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी एस की, बिकॉज दोनों एक जैसे ही टर्म है। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं, यदि हम इसको एक बार मैं इसको एक बार 0 के इक्वल में पुट कर दूं, क्योंकि इनमें से एक तो 0 हो गई डेफिनेटली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू देखिए क्या मिलती है।
ठीक है, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 2s माइनस वन, 2s माइनस वन को 0 के इक्वल में पुट कर दूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2s, ये माइनस वन उधर चले जाएगा जो कि प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, और एस ये 2 मल्टीप्लीकेशन में एस के साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा डिवाइड में। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी एस की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। ओके, सिमिलरली यहाँ मुझे एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 1 उधर चले जाएगा। ठीक है, और 2 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई है, और यहाँ पे आप एस की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि ये इसका 0 है कि नहीं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करनी है, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने तो जीरोस तो पता कर लिया, अब हमें रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप को तो मैं लिख देता हूँ, हमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है। ओके, तो अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए हम जानते हैं कि जो अल्फा है हमारा, ठीक है, अल्फा को ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, ये अल्फा है, जो अल्फा है वो भी हमारा 1/2 है। ठीक है, पहला रूट, और जो बीटा है उसकी वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, 1/2, एक बार इनका एडिशन करना होगा और एक बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स, पहले हम एडिशन करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स बोल देता हूँ, सम ऑफ फ्रूट्स विल बी सम ऑफ फ्रूट्स। ओके, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको पहले कंपेयर किया था, बी और ए क्या होंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है, बी की वैल्यू होगी -4 और ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, बी की वैल्यू ऑलरेडी -4 है, ये माइनस है, बी की वैल्यू -4 है। ओके, और ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ओके, ए की वैल्यू 4 है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है एक रूट, और दूसरा रूट भी हमारे पास 1/2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा, 1 + 1 विल बी 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4। अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मिलेगा और राइट हैंड साइड पे भी 1 मिलेगा। पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, रिलेशनशिप में। अब हम सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में देखिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, मल्टीप्लाई में देन अगेन 1/2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, आप देख सकते हैं सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, 1/4। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 लेफ्ट हैंड साइड पे, और पॉजिटिव में भी क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमने रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, मतलब हमारे रूट्स सही है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमारी 6x² - 3 - 7x²। ओके, बेटा हमारी थर्ड क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 6x² - 3 - 7x। ओके, तो हम 7x को पहले इधर आगे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 6x² - 7x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं,
अब हम देखते हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक पेन कलर ठीक है, रेड ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 6 को यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई, देखिए अब हमें स्प्लिट करना है 7 को, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे मैंने बताया। जो फर्स्ट टर्म है हमारा, पहले इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर इट विद द compare it with x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके साथ में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है, ठीक है। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। c की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, 7 को, ठीक है। 7 को स्प्लिट करने के क्या तरीके हैं, हमें ऐसे 2 टर्म चाहिए, ठीक है। सपोज करो हमें टर्म 1 टर्म 2 किस तरह से चाहिए, टर्म 1 इंटू टर्म 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, सॉरी इधर टर्म 2 आ जाएगा। किस तरह से हमें 2 टर्म चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 6 इंटू -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू सी, तो -18 हो जाएगा। ओके, 6 इंटू -3 -18, और टर्म 1 टर्म 2 को ऐड करेंगे तो, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को ऐड करेंगे तो, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें सिर्फ 7, सॉरी माइनस करने पे, ऐड करने पे नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया इस साइन पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के साइन पे यहाँ पे माइनस है, तो टर्म 1 टर्म 2 को हम प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे हम यहाँ पे। माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे टर्म्स को पता करना है, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 3 को 18, सॉरी माइनस का 18 नहीं, सॉरी गाइस। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स देखना होते, मतलब उनके लाइक क्या बोल सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड, ओके, ना कि उनके साइंस। 6 इंटू 3 पे 18 आना चाहिए, ठीक है। 6 इंटू 3 पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन से टर्म हो सकते हैं गाइस, 18 9, 9 माइनस 2, ओके। पहला टर्म 9 हो सकता है, हमें सोचना होगा ऐसे टर्म। पहला टर्म हमें 9 होगा और सेकेंड टर्म 2 होगा, ओके। माइनस करने पे 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ जाएगा। तो ये वो 2 टर्म है, ठीक है। इस तरह से हमें सोचना होता है कि हमें ये नंबर को मल्टीप्लाई करने पे और ये नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। 6 और 3 को जो आंसर 18 आ रहा है, और ये जो है ये वाला बॉक्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन है माइनस वाला, इसको माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरह से इसको, 1 मिनट, हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 2, ओके। 9 माइनस 2, माइनस करने पे 7 आ गया है और मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 18 भी आ गया। ये यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक है। 6 तो ऑलरेडी है, और इस तरीके से, ठीक है ना, स्प्लिट करना होता है। देन 6x स्क्वायर, अब हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं, फिर कॉमर्स ले लेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा 9 और x इधर से मल्टीप्लाई होगा राइट साइड से, ओके। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और राइट साइड से 2 मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड से 30 मल्टीप्लीकेशन, देन -3 इज इक्वल टू 0, ओके। फिर हम क्या करेंगे,
इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। इनमें से कॉमन देखिए बहुत सारा आ रहा है, 3x आ रहा है, ओके। 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा और एक x बचेगा 2x, ठीक है। माइनस 3 3 जा 9 होता है, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, मतलब माइनस कॉमन ले रहे हो, ओके, माइनस का 1। तो यहाँ पे ये जो 2x है, दो पॉजिटिव से मिलके बना होता है, 1 मिनट नहीं, प्लस का ही 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह से ही बनाना होगा इस टर्म को। तो ये 2x माइनस 3 ऑलरेडी यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये 2x माइनस 3 पूरा ही कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, 2x माइनस 3, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, देन बचेगा 3x, यहाँ पे 3x ही बचा, ये तो 1 बन जाएगा इनटू में, और प्लस 1 इंटू 1 यानी प्लस 1 कॉम, ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट कर दिया, इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इस मिडिल टर्म को। अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट तो कर दिया, या तो देखो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तब ये पूरा टर्म 0 बना होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम, लेट एज्यूम जो 2x माइनस 3 है ये 0 एक बार, ठीक है। चल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये 0 है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस का 3 बन जाएगा, देन ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा 3/2, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें ये, ठीक है। और फिर है 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो x की वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगी, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, और मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, ठीक है, एक 3/2, एक माइनस 1/3। अब इसको रख के देख सकते हैं, सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको अल्फ़ा, हमें एक अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है विच इज़ 3/2, और एक हमें बीटा की वैल्यू भी मिल गई है विच इज़ 1 - 3, ओके। अब हम रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हमने जीरोस यानी रूट्स तो पता कर लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए। मैथमेटिक्स काफ़ी डीप है, पेन मोड, ओके, ठीक है, यही 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ऐसे क्या हो गया, ओके। एक्चुअली पेन चेंज करने के पेन चेंज करने के उसमें, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप को हम सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब रिलेशनशिप पहले क्या थी, सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ओके। सम ऑफ फ्रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन है, ओके, माइनस बी अपॉन है, और b और a की वैल्यू क्या हम सब देख लेते हैं एक बार। a की वैल्यू है 6, ठीक है, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है -3, यानी माइनस तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू थी -7, ठीक है, और a की वैल्यू थी 6, आई थिंक, क्या a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3, ठीक है, यानी 6, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है गाइस। अब अल्फा की वैल्यू भी रख देते हैं हम यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू थी 3/2, और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है। अब ये 3 2 का एलसीएम लेंगे, ये सॉल्व करते आते ही होगा गाइस, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, 9 2 3 है 6, 3 3 is 9, माइनस 3 2 is 6 2, या अब देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें 7/6 मिला, और राइट हैंड साइड पे भी 7/6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, ओके, हमारे रूट सही है। अब हम सेकेंड वाला सेटिस्फाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके।
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ओके, सी अपॉन ए। और अल्फा की वैल्यू वही है हमारे पास 3/2 इंटू 1/, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 3/2 इंटू मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, और हमारे पास सी क्या था, हमारे सी की वैल्यू थी -3/6, ठीक है, -3/6, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6 थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3 राइट हैंड साइड पे, सॉरी -1/2, और सिमिलरली यहाँ पे भी आ रहा है -1/2, ठीक है। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -1/2। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है, और सम ऑफ फ्रूट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है। इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हमारे जो रूट्स आए वो सही है, ठीक है, विच इज 3/2 एंड -1/3, ओके, ये हमारे रूट्स है। समझ में आया गाइज आपको? ओके गाइज, आज तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ओके, और आप इस नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं जिस पे मैं लिख रहा हूँ। मैं इसे PDF में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके, और ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके गाइज। सो ओके गाइज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके, आपके अकाउंट में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।